ஓம் ஹம் ஷம் 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 நாயகா பூமியில் வந்த விநாயகா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா பூமியில் வந்த விநாயகா பரிபூர்ண சயஜயோகினி பரிபூர்ண சயஜயோகினி சச்சிதானந்தத்தின் ஒரே வழி ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா பூமியில் வந்த விநாயகா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா அகங்காரத்தை ஒழித்திடுவாய் எங்கள் மமகாரத்தையும் அழித்திடுவாய் அகங்காரத்தை ஒழித்திடுவாய் எங்கள் மமகாரத்தையும் அழித்திடுவாய் மன்னிக்கும் குணத்தை தந்திடுவாய் மன்னிக்கும் குணத்தை தந்திடுவாய் நாங்கள் தியாகம் செய்திட உதவிடுவாய் ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா பூமியில் வந்த விநாயகா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா ஆக்ஞா சக்கரத்தின் அதிபதி நீ ஸ்வர்க்கத்தில் என்றும் நீதிபதி ஆக்ஞா சக்கரத்தின் அதிபதி நீ ஸ்வர்க்கத்தில் என்றும் நீதிபதி நிர்விசாரத்தை தந்திடுவாய் நிர்விசாரத்தை தந்திடுவாய் நீ அகிலம் போற்றும் பாலகா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா பூமியில் வந்த விநாயகா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா சாந்தம் தந்திடும் கோபாலா செய்த பாவங்களை மன்னித்த சேவிதா சாந்தம் தந்திடும் கோபாலா செய்த பாவங்களை மன்னித்த சேவிதா மகாலட்சுமியின் மைந்தனையா மகாலட்சுமியின் மைந்தனையா நீ ஆதிசக்தியின் செல்லமையா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா பூமியில் வந்த விநாயகா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா விஷ்ணு தத்துவத்தின் அவதாரம் நீ ஏகாதசத்தில் பிரதானம் விஷ்ணு தத்துவத்தின் அவதாரம் நீ ஏகாதசத்தில் பிரதானம் பரிபூர்ண சயஜயோகினி பரிபூர்ண சயஜயோகினி சச்சிதானந்தத்தின் ஒரே வழி ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா பூமியில் வந்த விநாயகா ஓம் ஹம் ஷம் நாயகா ஹம் ஷம் ஓம் ஹம் ஷம்
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளுவோம். இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நமது கண்களை மூடிய நிலையில் மூச்சை மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக விடுவோம். அவ்வாறு நாம் மூச்சை மெதுவாக இழுத்து விடும் பொழுது நமது கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைப்போம். நமது கவனம் உள்முகமாக வைத்து நமது மூச்சை மெதுவாக இழுத்து நமது உள்ளுக்குள் வைத்து மெதுவாக விடும் பொழுது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது சகஸ்ராரா திறந்து நமக்கு அந்த நுண் அதிர்வுகளை உணர முடியும். நமது சகஸ்ராராவில் நன்கு குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகள் வெளிப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் நமது 2 கைகளிலும் நுண்ணதிர்வுகளை உணர முடிகிறது. கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை இடது இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளது. தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ மகா காளி 3 தெய்வீகமாக ஒருங்கிணைந்த திரிகுணாத்மிகாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்து 2ஆம் பிறப்பை தந்திருக்கிறீர்கள். எங்களின் ஒவ்வொரு செயல்களிலும் தங்களின் கவனம் முழுமையும் இருக்கிறது என்கின்ற அந்த எண்ணம் எங்களுள் ஆழமாக நிலைநிறுத்தி நாங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களில் தர்மமும் உண்மையும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா.
அந்த கவனத்தை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் அந்த கவனத்தை பெறுவதற்கு எங்களின் தியான நிலையை தயவு செய்து மேம்படுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் யார் என்பதையும் எங்களுள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் தாங்கள் யார் என்பதையும் எங்களுக்கு உணர வைத்திருக்கிறீர்கள். அந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருக்க தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றுங்கள். நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அன்பு தத்துவத்தை மற்ற அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லக்கூடிய கருவிகளாக நாங்கள் இருக்கவும் எங்களை அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தயவு செய்து தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். நமது கையை வலது கை இதயத்தில் வைத்திருப்போம். அந்த நிலையிலிருந்து அதே இடத்திலேயே சற்று கை தொடாமல் தூர வைத்து கவனிங்கள். நமது இதய சக்கரத்திலிருந்து குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் வெளிப்படுவதை நாம் உணர முடியும். கை தொடாமல் சற்று மேலாக தூக்குங்கள். மெதுவாக இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वाहा।
श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைப்போம். தாயே, பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறைகளையும், தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தந்தருளுங்கள். தாயே பூமி தேவி, தயவு செய்து நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். இடது கை அன்னையை நோக்கியும் வலது கை பூமி தாயின் மீதே வைத்து கவனம் மட்டும் நமது இடது பக்கத்தில் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மகா காளியாக வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான பயத்தையும், தூய்மையற்ற ஆசைகளையும், தூய்மையற்ற கவனத்தையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுள் எங்களின் தூய ஆத்மாவை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ பைரவராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மன அழுத்தங்களையும் மனக்குழப்பங்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தூய ஆத்மாவாகவும் தூய விருப்பத்தை கொண்டவர்களாகவும் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் மைய நாடியோடு இணைந்த நிலையில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை இடாநாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் மட்டும் நமது வலது பக்கத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களின் ஆத்மாவை தூய அறிவின் மூலமாக நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். தாயே, ஸ்ரீ ஹனுமராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிட்டு எங்களின் செயல்களில் உண்மையை நிலைநிறுத்துவதோடு அதற்குரிய சக்தியையும் வழிகாட்டுதலையும் காட்டுகிறீர்கள். தாயே, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, அதனை அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. எங்களின் ஆத்மாவை தயவு செய்து நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் உண்மையை தர்மத்தை எங்களுள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் மைய நாடியோடு இணைந்த நிலையில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய மத்திய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் தூய விருப்பத்தையும் சமநிலையையும் தயவு செய்து ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாக எங்களுள் இருந்து எங்களை எப்பொழுதும் தங்களின் ராஜ்யத்திற்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம், தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குணம் கொண்டவர்களாக மாற்றுங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து கருணையையும் இரக்க குணம் கொண்டவராகவும் மன்னிப்பவராகவும் இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பாசாங்குத்தனமான விஷயங்களையும் நிபந்தனைகளையும்
தவறான எண்ணங்களையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து மறைந்து தங்கள் அருளால் போகட்டும். தங்களின் ஞானம், விவேகம், தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, மன்னித்தல் குணம், பக்தி, சரணடைதல் போன்ற அனைத்து இனிமையான குணங்களும் எங்களுள் நிலைநிறுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் தங்களின் தத்துவம் வெளிப்படட்டும். ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள். தங்களின் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தட்டும். தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து அனைத்து தேவதைகளையும் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் விழிப்புணர்வு அடைய செய்திடுங்கள். எங்களின் ஆத்மாவை மூலாதார சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ விகட கணேசா தத்துவத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ விகட கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விகட கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனத்தை நமது மூலாதாரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயி, தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதி,
தயவு செய்து எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் இருக்கும் கோபத்தை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தங்களின் கவனத்தில் வைத்திருங்கள். அச்சக்கரத்தின் தேவதைகள் அனைவரையும் விழிப்புணர்வு அடைய செய்திடுங்கள். எங்களின் ஆத்மாவை எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி ஸ்ரீ லம்போதரா கணேச தத்துவத்தை விழிப்புணர்வு அடைய செய்திடுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ லம்போதரா கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லம்போதரா கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுள் தங்களின் தூய விருப்பத்தையும் மன்னித்தல் குணத்தையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர இந்த மனமோ உடலோ புத்தியோ அல்ல. நாங்கள் தூய ஆத்மாதான். தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாய், எங்களின் மன்னித்தல் குணம் தங்கள் அருளால் மேம்படுத்தப்பட்டு எங்களின் ஆத்மாவை நாங்கள் உணர்வதற்கும் எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இருக்கும் தெய்வங்கள் தங்கள் அருளால் விழிப்புணர்வு அடையவும் ஆசிர்வதியுங்கள் தாயே. எங்களுள் ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேச தத்துவத்தை எங்களின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது வலது கையை முன் நெற்றியில் வைத்து மெதுவாக தலையை குனிந்து அன்னையிடம் முழு மனதோடு நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். மெதுவாக
நமது வலது கையை பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். தாயி, தயவு செய்து எங்களின் முன் பிறவியின் கர்மாக்கள் அனைத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நாங்கள் முழுமையாகச் சரணடைய அருள் புரியுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் இப்பிறவி முப்பிறவியில் நாங்கள் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களின் பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் தங்களின் கவனத்தில் வைத்து அனைத்து தேவதைகளையும் தயவு செய்து விழிப்புணர்வு அடைய செய்திடுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா கணேச தத்துவத்தை எங்களின் பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தாயே, ஸ்ரீ தூம்ரவர்ண கணேச தத்துவத்தை எங்களின் பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்தி எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுள் தயவு செய்து விழிப்புணர்வடைய செய்திடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ தூம்ரவர்ண கணேச சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தூம்ரவர்ண கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. மெதுவாக இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நமது கவனம் மட்டும் நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். நமது வலது கையை நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு மேலே கொண்டு சென்று நமது நுண்ணதிர்வுகளின் அந்த வெளிப்பாட்டை நாம் கவனிப்போம். நமது வலது கை மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மேலே கொண்டு செல்லும் பொழுது, தூக்கி கொண்டு பொழுது அந்த நுண்ணதிர்வுகள் எந்த அளவிற்கு மேலே செல்கிறது என்பதை நாம் நமது கைகளின் மூலமாக கவனிக்க முடியும். நன்றாக ஆழ்ந்த தியான நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு கைகள் இல்லாமலேயே கவனத்தின் மூலமாக நாம் நமது நுண் அதிர்வுகளை எந்த அளவிற்கு மேலே செல்கிறது என்பதை உணர முடியும். தாயே, எங்களுக்குள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையையும் அதன் மூலம் சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்தி நாங்கள் தியானத்தின் ஆழ்நிலை அமைதி நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது இனி தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். और इस विशेष योग के दिन, जिसे कि अंगारकी कहते हैं, अंगार की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। हर चतुर्थी को श्री गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जो मंगलवार को आती है, कभी कभी आती है साल में एक आध बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, जिस मंगलवार को कर चतुर्थी आ जाए तो वो दिन बहुत बड़ा मनाया जाता है। और आज वही योग है कि हम लोग मंगलवार के रोज़ गणपतिपुणे में बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये बड़ा भारी योग अंगारकी का माना जाता है। और यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं
श्री गणेश की पूजा करने के लिए, और इस कदर वहाँ पर गाड़ी जाम हो गई थी, 60 गाड़ियाँ सामने की, हम तो पूरा घूम के फिर आए, क्योंकि कितने भी जल्दी चलने से फ़ायदा नहीं हो। जो होना होता है इसी प्रकार होता है। और जब तक सहज में हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जो भी होता है उसको सबूरी से देखना चाहिए, उसमें सबूरी होनी चाहिए। कि अगर आप उसी वक्त जल्दबाजी करें या कुछ घबराहट आ जाए तो कार्य नहीं हो सकता। सबूरी करें, और सबूरी करने से बराबर सूझ जाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो जल्दबाजी जो है ये असहज चीज़ है। सहज में आप में सबूरी होनी चाहिए, जिसके बारे में साईनाथ ने बहुत कहा है कि सबूरी में रहो। साईं मिलत सबूरी में। और सबूरी शब्द जो है कुछ अपभ्रंश है मेरे ख्याल से, लेकिन इसका अर्थ होता है कि कोई भी बात हो रही है तो उसमें तितिक्षा माने ठहर जाना, देखना। और इस तितिक्षा में जब आप आ जाते हैं तो ये परम चैतन्य कार्य कर देता है और आपको बिल्कुल सही बात पता चल जाती है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते का अवलंबन करना चाहिए। पर आप अगर जल्दबाजी में आ जाएंगे तो आप विचारों के चक्कर में फंस जाएंगे और इधर से उधर दौड़ते हुए आपको चीज़ नहीं मिलेगी। और आज और ऐसा भी एक बड़ा भारी योग है कि आज जीसस क्राइस्ट का भी जन्मदिन है। हमने बहुत बार बताया है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो श्री गणेश का ही अवतरण है, और इसका आपके पास में प्रमाण भी है, सजोग है। सो आज उनका जन्मदिन होना, आज इनका भी जन्मदिन होना, मंगलवार का दिन होना और इतना बड़ा समारंभ होना और सब दूर आतिशबाजी होना, ये बहुत बड़ी योग की बात है जो हम इस महागणपति के स्थान पे आकर के उस महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि श्री गणेश की जो विशेषताएं हैं उनकी कौन सी विशेषता है आज के दिन जो प्रकटित होती है। ऐसे इससे पहले मैंने बताया था कि विनय, या जिसको कहते हैं हम ह्यूमिलिटी, नम्रता, वो उनका विशेष गुण है। और दूसरा है उनका विजडम, इसके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे मराठी में। इसको उन्होंने बताया कि विजडम का मतलब है सुबुद्धि। चलिए ठीक है, सुबुद्धि। बहरहाल ये सब चीज़ों का दान गणेश तत्व से होता है, लेकिन उनमें एक और विशेष है कि वो बहुत ठंडे दिमाग आदमी है, बहुत ठंडे दिमाग आदमी है। उनकी चाल बहुत ठंडी है। जैसे कि हाथी है, हाथी में आप देखते हैं कि बहुत धीमी चाल है, पर उसकी चाल ऐसी सुंदर होती है कि किसी भी स्त्री जो अच्छे से चलती है उसको कहते हैं गजगामिनी, माने वो हाथी के जैसे चलती है। धीरे धीरे पाँव उठाना, कहाँ पाँव रखना वो सोचना, कहीं कोई पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जानवर नहीं आना, इसका ख्याल करते हुए वो चलते हैं। और सामने अपनी सूंड से फूंकते चलते हैं कि सामने कोई और ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाए कि जिससे हमारे हाथ से वो नष्ट हो जाए। दूसरे वो सिर्फ घास खाते हैं, और घास खा कर के भी इतने बलिष्ठ होते हैं कि जो बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें कि बहुत वज़न उठाना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ हाथी का ही उपयोग होता है। तो इस हाथी की जो विशेषता है वो ये भी है कि ये बहुत धीमी तबीयत का आदमी है, किसी मामले में जल्दबाजी नहीं करता। और दूसरी इनकी जो और विशेषता है वो ये है कि ये इनकी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग स्मरण शक्ति।
किसी अगर बच्चे को बचपन में भी देख लेगा तो कितना भी बड़ा हो जाएगा उसको पहचान लेगा। उसी तरह से ये लेफ्ट साइड में श्री गणेश का कार्य होने के कारण आप भी जानते हैं कि जब आपकी लेफ्ट साइड कमज़ोर हो जाती है तो आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है, और इसलिए हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड को उठाते हैं जब मेमोरी ख़त्म हो जाती है। वजह यह है कि आपके अंदर का गणेश तत्व कम हो गया। जब आप राइट साइडेड हो जाते हैं तो आपका लेफ्ट साइड का जो गणेश तत्व कम होते जाता है। जो आदमी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेमोरी जो है आप देखिए बुढ़ापे में इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खुद को भी पहचान पाते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न पड़ जाता है। इसलिए श्री गणेश का जो एक विशेष गुण है कि उनकी सुबुद्धि तो है ही, पर उस सुबुद्धि के साथ उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तीक्ष्ण है। वो हर एक चीज़ को याद करते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि कुंडलिनी पर जो कुछ भी निवेदन होता है, जो कुछ भी इम्प्रिंट होता है, जो लिखा जाता है, वो सब कुछ श्री गणेश ही करते हैं। उनके हाथ में एक कलम होती है, उस कलम से वो लिखते हैं। वो कलम भी उन्हीं का एक टूटा हुआ दांत, उससे वो लिख देते हैं कि आप क्या हैं, आपने क्या तकलीफ़ें उठाई, आप क्या परेशानी उठाई, आपकी खोज में आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या गलतियाँ की, वो सब उसके अंदर वो लिख देते हैं। तो जब वो कुंडलिनी उठने लग जाती है तो जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई खराबी हो जाए तो कैसे खड़खड़ाने लगता है, ऐसे ही कुंडलिनी की खड़खड़ाहट आप देखते हैं जब आपके चक्रों पे वो गुजरती है, और इसीलिए आपको पता हो जाता है कि इनके ये चक्र खराब है, उनके चक्र खराब है। इस कदर ये बिल्कुल शास्त्रीय साइंटिफिक चीज़ है। तो गणेश तत्व के एक ही गुण नहीं है कि अबोधिता रहे और मनुष्य बहुत निष्पाप रहे, इसी से नहीं होता, पर उसका अनेक गुण है। उसमें से एक गुण ये भी है कि आपके अंदर विजडम होना चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, ये जानना चाहिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जो आज की अंगारिका जो है, अंगार की जो आज की विशेष चतुर्थी मानी जाती है, ये क्या चीज़ है? इसमें ऐसा है कि श्री गणेश स्वयं जो है वो अंगार को ठंडा करते हैं। कुंडलिनी भी देखिए तो एक ज्वाला ही है, जैसे कि कुंडलिनी जो है उसकी प्रक्रिया ज्वाला की भांति है, क्योंकि ऐसे तो सब चीज़ पृथ्वी के तरफ जाती है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से सारी चीज़ें पृथ्वी की तरफ जाती है, और सिर्फ ये जो ज्वाला है यही ऊपर जाती है। कोई सी भी आग ऊपर की तरफ जाती है और बाकी सब चीज़ें पृथ्वी की तरफ दौड़ती है। ऊर्ध्व गति सिर्फ एक इस चीज़ को मिलती है कि जो अग्नि है, और इसलिए ये जो है ये आपकी अग्नि को शांत कर सकते हैं। ये दो तरह से अग्नि को शांत करते हैं। एक तो ये कुंडलिनी को शांत कर देते हैं, कुंडलिनी को ये बता देते हैं कि इस आदमी में ये दोष है, ये तकलीफ़ें हैं, कोई हर्ष नहीं, तो भी आप इनको पार कराइए, क्योंकि कुंडलिनी का बालक श्री गणेश, और जो आप में बालक है वो श्री गणेश है। तो वो उसी आत्मीयता से उस कुंडलिनी को समझा देता है कि तुम तो माँ हो और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनमें जागरूक हो जाऊँ, तो तुम मेरी मदद करो। और वो इस तरह से शांत हो जाती है सोच करके कि मेरा बालक ही ये चीज़ को मांग रहा है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर गर्मी हो, कुछ हो, उसमें एक तरह से शांति आ जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक बार देवी बहुत नाराज़ हो गई और उन्होंने देखा कि संसार में बहुत कुछ लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उसे इतनी तकलीफ़ हुई, इतना संताप हुआ कि ये सारी सृष्टि जो मैंने बनाई इसको ही मैं नष्ट कर देती हूँ। तो उन्होंने ये सोच करके और सब दूर संहार की स्थिति बना ली और बहुत नाराज़ हो गई। और जब उनका नृत्य शुरू हो गया तब श्री महादेव ने ये सोचा कि देवी तो इतनी नाराज़ है, क्रुद्ध हो गई, अब सब संसार नष्ट ही हो जाएगा, तो इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने उन्हीं का बच्चा जो कि कार्तिकेय था उसको देवी के पैर के नीचे डाल दिया। उस पर पैर रखते ही उनकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई कि मैं क्या करूं। जो इतनी क्रोध से लाल थी वो भी उस बच्चे को देख करके एकदम शांत हो गई। इसी प्रकार ये हमारी कुंडलिनी को एक प्रकार से शांत कर देते हैं कि तुम अपने बालक को जन्म दे रही हो, इस वक्त नाराज़ी ठीक नहीं किसी भी तरह से। कभी कभी तो कुंडलिनी को हमने इतना सताया होता है
क्योंकि गलत गुरुओं के पास गए या कुछ गलत हम लोगों ने भी काम किए तो बेचारी कुंडलिनी लस्तम पस्तम बिल्कुल रहती है। उसका भी आधार सिर्फ श्री गणेश है जो उसको ढकेलते हैं ऊपर की तरफ। श्री गणेश की शक्ति से ही कुंडलिनी ऊपर उठ सकती है, इसीलिए उनको अंगार कहते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति कुंडलिनी को दे देते हैं। और कुंडलिनी में जो आग है या जो उसकी ज्वालाएं उठती हैं वो शांत है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस तरह की शांत भी ज्वालाएं होती हैं। एकदम शांत ज्वालाएं हैं, सप्त रंग की होती हैं और एकदम शांत ज्वालाएं हैं और सहस्त्रार में आपको दिखाई देती है ये कितनी शांत है। ये सारा कार्य श्री गणेश ने किया हुआ। तो एक प्रकार वो आपका भी गुस्सा कम कर सकते हैं। आपकी भी नाराजगी दूर कर सकते हैं। और जब हम नाराज हो जाते हैं तो उसमें हम बहक जाते हैं और हमें याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हम किसी को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, किसी को खून कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक़्त जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ श्री गणेश से होता है और श्री गणेश जो है आपके गुस्से को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ईसा मसीह भी उसी तरह के हैं कि उन्होंने ये बताया कि सबको क्षमा कर दो। जिसने तुम्हें तकलीफ दी उसके प्रति तुम गुस्सा करते हो, पर अगर तुम सबको क्षमा करना एक बार सीख लो कि सबको क्षमा कर दी। जिन्होंने उनको इतना अपमान करके, इतना सता करके और सूली पे चढ़ाया, उनके लिए भी उन्होंने परमात्मा से, अपने पिता से कहा कि हे पिता इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि ये क्या करें। ऐसे जब ईसा मसीह ने कहा तो आप सोचिए जिस साल लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया, इतना परेशान कर दिया, उनके लिए भी उन्होंने इतनी क्षमा की वृत्ति ली। सो ये उनका एक चरित्र है, एक स्वभाव है। और दूसरा भी ईसा मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब लोग उनके मंदिर के सामने बैठ करके और चीज़ें बेच रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी हैं, मंदिरों में लोग जाते हैं तो वहाँ चीज़ें बेचते हैं और वही चीज़ चढ़ाते हैं। जैसे एक नारियल को चढ़ाया फिर ला के उसको बेचते हैं, माने उसका बिजनेस बना लेते हैं। तब उन्होंने हाथ में एक खंडर लेके सबको मारा और कहा कि तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हें अगर करना है तो ठीक है, जो कुछ भी है वो स्वच्छ तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप भगवान को चढ़ा रहे हैं उसको लाकर फिर बेच रहे हैं, जो हार भगवान को चढ़ा रहे हैं उनको लाकर फिर बेच रहे हैं। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। और इतना उन्हें क्रोध आया कि उन्होंने हाथ में हंटर लिया और उसको सबको तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। ये दूसरी साइड है। ऐसे ही श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है। तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहाँ भी पधारे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीज़ें जो करते हैं वो सिर्फ आप
जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीज़ें, बच्चे, सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन करके जीते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है, सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है, उसके अंदर शुरू में होता है। 12 साल तक ये एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं और वो फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा, और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है, इस तरह से इनको पता हो जाता है, और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, या कोई सी भी चीज़ आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है, या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं। और जब आप माँ के विरोध में कार्य करते हैं, माँ के विरोध में काम करने का मतलब है नैतिकता से गिर जाना। पिता के विरोध में जाने का मतलब है कि आप कार्यशील न हो, कार्यक्षम न हो, आप कार्यकर्ता न हो, आप में आलस्य आ जाए, ये तो पिता के खिलाफ पाप है। लेकिन माँ के खिलाफ पाप है जहाँ आप अपनी नैतिकता को खो देते हैं। जिन्होंने अपनी नैतिकता को खो दिया है, ऐसे लोगों का ये चक्र बहुत कमज़ोर हो जाता है, और इसीलिए फिर ये चक्र जो है, इसको ठीक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो लोग इस तरह से गिर जाते हैं और उनका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे एड्स की बीमारी है, या इसी तरह की जो बीमारियां हैं, जिसे कि हम गुप्त रोग कहते हैं, ये सारे गुप्त रोग अनैतिकता से आते हैं। और ये अनैतिकता के रोग जो हैं, किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकते जब तक आपके गणेश तत्व ठीक नहीं हो जाएगा। इसलिए समझ लेना चाहिए कि हमें अपने अनैतिकता से अपने सारे व्यक्तित्व को, अपने सारे जीवन को पूरी तरह से आडोलित रखना चाहिए, पूरी समय उसमें पवित्रता में डूबे रहना चाहिए। ये जो पवित्रता है, उसके बारे में ईसा मसीह ने बहुत बढ़कर बात कही है, क्योंकि आज्ञा चक्र पे उनका स्थान है। इसलिए उन्होंने आज्ञा चक्र पे बहुत बड़ी बात कही, और वो ये कहा कि तुम्हारे आँखों में भी कोई भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। Thou shalt not have adulterous eyes। आँखें भी ऐसी हो, वो भी निर्मल होनी चाहिए, क्योंकि आँखें निर्मल नहीं है तो ईसा मसीह वहाँ नहीं है। लेकिन देखिए, परदेश में हम देखते हैं कि हर एक ईसा को मानने वाले लोग, सबकी आंखें बहुत खराब है। इस औरत की तरफ देख, उस औरत की तरफ देख, उस तरफ देख, फिर औरतें भी ऐसी आदमियों की तरफ देख, उनकी आंख ऐसी चलती रहती, कभी आंख स्टेडी नहीं रहती। और फिर एक बार ये चल जाए तो ये नेगेटिविटी होती है, भूत है, आँखों से चलते हैं, और एक पे जाएंगे फिर दूसरे पे जाएंगे। उसका कोई खेल ऐसा है कि उस खेल में कोई मज़ा तो नहीं आता, पर वो खेल ही अपने आप ही चलते रहता है, और आदमी इसी में पागल हो जाता है। तो ईसा मसीह ने भी पवित्रता की अति सूक्ष्म बात कह दी कि तेरी आँख भी अपवित्र नहीं होनी चाहिए। किसी की और तेरी आँख से भी तुम अपवित्रता के भावना से न देखो। ये बात उन्होंने कही, जैसे कि ये पवित्रता का ही पूरा स्रोत है, इसलिए उन्होंने पवित्रता की बात की। ईसा मसीह ने ज़्यादातर पवित्रता की ही बात की है। जहाँ जहाँ बात की है वो ज़्यादातर कि आप अपने को कैसे पवित्र रख सकते हैं और कैसे आप नैतिकता के बल पर खड़े हो सकते हैं। सो सहयोग में, सहज में सब होता है जब आप गणेश जी को पूर्ण तरह से वर्ण करते हैं और गणेश जी को मानते हैं कि ये शक्ति हमारे अंदर आ जाए। ऐसे तो हर एक चक्र पे गणेश, टुडे वी हैव द बर्थडे ऑफ क्राइस्ट, the birthday of Sri Ganesha, and also on such a date which is so well worshipped and regarded as something important in India. May God bless you. அன்னையின் உரை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்தில் இருக்க தூய விருப்பத்துடன் தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். தயவு செய்து எங்களை எப்பொழுதும் தங்களின் கவனத்தில் வைத்திருங்கள். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளவும்.